Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. I hope dear learner you have been learning from my video contents which I have been providing on my YouTube channel, that is English Tycoon. Dear learner, if you are new to my channels, I would like to inform that this channel is created to provide all the essentials information related English communication, not only English communication but also the channel provide you the video and content and classes based on all the one-day exam, and our team is also committed to give you a regular video and the video which are going to help you in cracking different exams like NDA, CDS, SSC, banks, as well as the team is targeting to give the video and content based on PET, IELTS, TOEFL एग्जाम जो आपको देते हैं एक सर्टिफिकेट सर्टिफाई करते हैं that your English is good, and these certificate exams help you, these certificate help you to get job or admission in any abroad university or in any company working in abroad. So many things which we are doing for you people only, so that you can select your career, you can get success very easy and very fastly. So dear, in today's video, as I told you that my target is both English speaker, the student those who are good in English as well as those who are weak in English. तो ये वीडियो भी होने वाली है bilingual ताकि आप तेजी से समझ पाए. Dear, many of you asking that when you are learning vocabs, when you are learning words, you people are forgetting this word very frequently, or when you are speaking that these words are not recalling to you. इसका रीजन क्या है, ऐसा आपने मुझसे पूछा था. तो सिंपल रीजन है माय डियर, when you are switching from one language to another language, you need to change, you need to do a big change. The change is आप अपनी लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं. उस समय होता क्या है, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, वी नीड टू फोकस. दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग. आप कन्वर्ट हो रहे हैं अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. उस समय होता क्या है कि वर्ड्स पहले हमें हमारी मेन लैंग्वेज में आते हैं, फिर सेकेंडरी लैंग्वेज में आते हैं इनिशियल सिचुएशन में, राइट. तो इसलिए मैंने ये वीडियो रखा है बायलैंग्वेज, और इसमें आपको मिलेगा वर्ड्स विथ एंटोनी जो आपकी वोकैब लर्निंग स्पीड को बढ़ा देगा, प्लस इट विल हेल्प यू इन रिकॉलिंग 2 वर्ड्स ऑफ ईच वर्ड्स इमीडिएटली. तब जब आप बोलेंगे उस समय, या जब आप लिखेंगे, या जब आप सुनेंगे उस समय 2 वर्ड्स इमीडिएटली आपके माइंड में आएंगे. एक तो मेन वर्ड जो वर्ड है, और उसका एक अपोजिट वर्ड. तो दिस इज अ बेस्ट वे ऑफ रिकॉलिंग एंड लर्निंग ऑफ वोकैब्स, कि हम एंटोनिम को लर्न करें, 2 अपोजिट वर्ड को लर्न करें. इससे क्या होगा, एक मेन वर्ड याद हो जाएगा, उसका सब वर्ड, उसका एंटोनिम भी याद हो जाएगा, और आप 2 चीज़ों को लर्न कर लेंगे. ठीक है, बिकॉज व्हेन वी कम्युनिकेट वी समटाइम हैव टू, most of the time we are speaking positive thing, but sometimes, or most of the time we are also need to what opposite words also. So if you know this word, you are capable to speak out very proper way. अगर आपको ये सारे वर्ड्स पता होंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोलेंगे, बिना किसी नर्वसनेस और बिना किसी हेजिटेशन के, राइट. सो लेट्स गो अहेड, ट्राई टू लर्न मोर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. As I told you are going to learn super fast, so I promise you I'll give you super fast, और आप लर्न करेंगे बहुत ही स्पीडी. चलिए देखते हैं. मैंने आपको बताया बायलैंग्वेज है, और सारी चीज़ें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि आपको हो सके लर्न सुपर फास्ट. देखिए क्या लिखा है, 50 इंग्लिश वर्ड्स विद एंटोनिम. यहाँ पे मैं 50 वर्ड आपको दूंगा, उसकी 50 एंटोनिम भी दूंगा. तो टोटल कितने वर्ड्स हम याद करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न 100 वर्ड्स विथ correct and exact pronunciation and correct and exact meaning in Hindi and English both, right. अभी आप इनिशियली में, अगर if you are a beginner in English, so you need to know the Hindi as well, तभी आप मूव कर पाएंगे. After some time when you learn little bit of English, after that आप directly English to English भी learn करेंगे. So don't worry. So let's go ahead. देखिए पहला वर्ड है accept. accept का मतलब होता है क्या, यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने लिखी है. देखिए accept का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना. एक्सेप्ट का मतलब ये एक्सेप्ट है, इसका मतलब है कि मंजूर कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना. आपने कोई गलती की, आपने कोई काम किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, यस आई हैव डन, मैंने ये काम किया है. और इसका ठीक अपोजिट अगर आपको क्या पूछा पता होना चाहिए, रिजेक्ट. तो देखिए आपने 2 वर्ड्स इमीडिएटली याद कर लिए, और ये यूनिक तरीका है याद करने का. अगर आप इंडिविजुअल याद करेंगे, एक्सेप्ट, एडवांस, ये
मेमोरी में थोड़ी देर के लिए बना रहता है, लेकिन अगर हम अपोजिट याद कर लें तो उसका फ़ायदा ये है कि ये लंबे समय तक बना रहता है इन द माइंड, प्लस इमीडिएटली ये फ्रिक्वेंटली आता है। जैसे इस तरह से लर्न करने से क्या होता है कि चीज़ें बड़ी फ्रिक्वेंटली लर्न हो जाती हैं, और हम कभी इस सिचुएशन में नहीं फंसते कि यार इसका अपोजिट क्या होगा, हमें दोनों चीज़ें याद हैं। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है देखो मंजूर कर लेना, और इसका अपोजिट होता है रिजेक्ट कर देना। ठीक है, क्लियर। हिंदी भी देखिए, ये मंजूर कर लेना और रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार कर देना, दोनों मैंने रखा है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। And if you're new to my channel, please do subscribe the channel, and please do share the videos with your friends so that they also get benefited with it, right? And if you are new in English, in the field of English, in the learning, and आप अपनी English communication को बेहतर बनाना चाहते हैं, और due to English you are not able to crack interview, or you are not able to crack any exam, you are not able to qualify PET, CHET and IELTS exam, तो आप आई हैव गिवन अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से रजिस्टर करें इन माई क्लास, इन स्पोकन क्लास और क्लास फॉर पेट और आयल्स और टॉफेल क्लास। ऑनलाइन क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग, और आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आप केवल नॉट आयल्स, टॉफेल्स और पेट को ही नहीं क्रैक करेंगे, और अपनी इंग्लिश को भी बेहतर बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, और इसका अपोजिट क्या होता है रिट्रीट। देखिए आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, बहुत दिमाग में ये क्लिक हो जाएगा। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, मैं पूछूं आपसे इसका अपोजिट, आप बोल दोगे सर रिट्रीट। अगर मैं वैसे ही पूछूं तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, ये बेहतर तरीका है, और आप भी जब याद करें तो इसी तरह याद करें। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट का मतलब पीछे। अराइव का मतलब क्या होता है आने वाला, आना। अराइव क्या होता है आना। आप फ्लाइट आती है, आप कहीं से आते हो तो अराइव होता है, उसका अपोजिट क्या होता है डिपार्चर, जाना। ठीक है, चलिए देखते चलिए। राइट, नेक्स्ट वर्ड है जागा हुआ, अवाक। अवाक का मतलब होता है उठा, नहीं स्लीपिंग मोड में नहीं होना। सुबह सुबह हम क्या करते हैं, अवैक करते हैं। उसका अपोजिट क्या होता है स्लीप करना, सोया हुआ। सुंदर इज कॉल्ड ब्यूटीफुल, सुंदर इज कॉल्ड ब्यूटीफुल। सुंदर का मतलब क्या है ब्यूटीफुल। इसका अपोजिट क्या होता है अगली, बुरा। शुरुआत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बिगैन। समाप्त को क्या बोलेंगे एंड, राइट। इसका अपोजिट है ब्रेव का मतलब होता है साहसी। कावर्ड का मतलब होता है कायर, जो डरता हो किसी चीज़ से, उसको क्या बोलेंगे कावर्ड। नेक्स्ट क्या है ब्राइट। ब्राइट का मतलब उज्ज्वल, उसका अपोजिट क्या होता है डार्क। बिल्ड का मतलब क्या होता है बनाना, बनाना। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है बिगाड़ना। एक वर्ड और है मेयर, MER। ठीक है, उसका मतलब ही क्या होता है डिस्ट्रॉय करना। बाई का मतलब क्या होता है खरीदना। सेल का मतलब क्या होता है अपोजिट, बेचना, राइट। क्लीन का मतलब क्या होता है साफ सुथरा। इसका अपोजिट होता है डर्टी। डर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं गंदा, राइट। ठंडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोल्ड, और इसका अपोजिट क्या होता है गर्म। गर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हॉट। ठीक है, आना इज कॉल कम, एंड जाना इज कॉल गो। बनाना का मतलब क्या होता है, ये बनाना दैट्स नॉट बनाना, ये क्रिएट है। ठीक है, क्रिएट करना का मतलब बनाना, और नष्ट करना का मतलब डिस्ट्रॉय। मुझे पता है आपके दिमाग में बनाना आ रहा है, दैट्स नॉट बनाना, ये है मेकिंग के से। दिन का मतलब डे, इसका अपोजिट क्या होता है नाइट, जिसको इंग्लिश हिंदी में रात कहते हैं। पहले का मतलब अर्ली, बाद वाले को कहते हैं लेट। अब देखिए इसको देखिए, ये वर्ड्स याद कर लीजिए लेट अर्ली। जैसे आप कहीं पहुंचे, पहले कोई आपसे पूछे यार कब आए, तो आप बोल सकते हैं ना कि लिटिल अर्ली, मैं थोड़ा पहले आया। ठीक है, लिटिल अर्ली। और फिर आपसे पूछिए भाई आप कब आए, तो आप बोल सकते हैं यार टुडे आई गॉट लेट, मैं थोड़ा देरी से आया। तो यही ये लेट है, देरी से आने के लिए लेट का प्रयोग, पहले आने के लिए अर्ली का प्रयोग। ओके, अगला क्या है आसान। आसान का मतलब क्या होता है इजी, और इसका अपोजिट क्या होता है डिफिकल्ट। हिंदी में देखते रहिए आप। खाली का मतलब एम्पटी, एंड भरा हुआ कोई। खाली का मतलब कोई स्पेस, जैसे मेरा घर अभी एम्पटी है, सामान रख के रख दिया फुल हो जाएगा। ठीक है, एम्पटी। दिमाग में आपका अभी आपके दिमाग में जो कैब है वो थोड़ी कम है, अभी तो वीडियो के लास्ट तक बहुत सारी हो जाएगी, भर जाएगा। तो एम्पटी का मतलब खाली, फुल का मतलब भरा हुआ। तेज मन मीन्स फास्ट, और उसका अपोजिट स्लो। ढूंढना को कहते हैं फाइंड, सर्च करना, कुछ सर्च कर रहे हैं आप, फाइंड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इसका अपोजिट क्या होता है खोना। पाना, ढूंढना का मतलब फाइंड या पाना भी होता है, और लूज, लूज का मतलब क्या होता है खोना। अगला क्या है फ्री। फ्री का मतलब फ्री, फ्री का मतलब फ्री। इम्प्रिजेंट, कैदी। आप फ्री हैं, आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन कोई जेल में है उसको सारा फ्रीडम नहीं, उसको इम्प्रिजेंट बोलते हैं। ठीक है, कैदी। ताज़ा इज कॉल्ड फ्रेश, अपोजिट क्या होगा ताज़ा का स्टेल, STAL। इसको बोलते हैं पुराना, पुराना लिखा है। अगर एक और आपको बड़ा बेसिक वर्ड बता दूं, बस जैसे कल का जो खाना होगा आज, स्टेल फूड हो गया। आज अभी तुरंत बन रहा है, दैट इज फ्रेश फूड, राइट। दोस्त इज कॉल्ड फ्रेंड, एंड उसका अपोजिट क्या होगा
दुश्मन, राइट। राइट, सो नेक्स्ट इज देना। देना को इज कॉल्ड टेक एंड लेना इज कॉल्ड, सॉरी, देना इज कॉल्ड गिव, लेना को क्या बोलते हैं, टेक। अच्छा इज कॉल्ड गुड, उसका अपोजिट होता है बुरा, बैड। खुश इज कॉल्ड हैप्पी, उसका अपोजिट क्या होता है, सैड। कठिन इज कॉल्ड हार्ड, हार्ड बोलते हैं, उसका अपोजिट क्या होगा, सॉफ्ट। हैवी मीन्स भारी, लाइट मीन्स हल्का, ठीक है। ये लाइट अगर जब एडजेक्टिव होगा तो लाइट का मतलब हल्का, और नाउन होगा तो लाइट का मतलब ऊंचा का मतलब हाई, नीचे का मतलब लो, ठीक है। गर्म इज कॉल्ड हॉट, ठंडा इज कॉल्ड कोल्ड, अंदर इज कॉल्ड इन, बाहर इज कॉल्ड आउट, ठीक है। बढ़ाना इज कॉल्ड इंक्रीज, इंक्रीजमेंट होना, डिक्रीज का मतलब घटना, अंदर इज कॉल्ड इन, बाहर इज कॉल्ड आउट। दिलचस्प का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, उबाऊ का मतलब होता है बोरिंग, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इफ आई कॉल यू व्हाट इज tell me antonym of boring, so you will say interesting. If I ask you tell me antonym of interesting, you will say it is boring, right? जुड़ना इज कॉल ज्वाइन करना, ऐड करना, सेप, उसका अपोजिट क्या होगा, सेपरेट, सेपरेट। दयालु इज कॉल काइंड, बैड इसका अपोजिट क्या होगा, क्रूअल। हंसना इज कॉल्ड लाफ, रोना इज कॉल्ड क्राई। प्रकाश इज कॉल्ड लाइट, ठीक है, अपोजिट डार्क। छोटा इज कॉल्ड लिटिल, बड़ा इज कॉल्ड बिग, इसका अपोजिट है। प्यार इज कॉल्ड लव, और आप किसी को प्यार नहीं करते तो आप हेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड हेट, हिंदी में बोलते हैं नफरत। पुरुष इज कॉल्ड मेल, और फीमेल इज कॉल्ड फीमेल, मतलब महिला को क्या बोलते हैं, फीमेल। पास इज कॉल्ड नियर, दूर वाले को फार। नया इज कॉल्ड न्यू, पुराना इज कॉल्ड ओल्ड, ठीक है। नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ, इसका अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। खुला इज कॉल्ड ओपन, क्लोज इज बंद का मतलब क्लोज। गरीब को क्या बोलते हैं, पुअर, और धनी को क्या बोलेंगे, रिच। सकारात्मक इज कॉल्ड पॉजिटिव, अपोजिट इसका क्या होगा, नेगेटिव। शांत इज कॉल्ड क्वाइट, पीसफुल, ठीक है। उल्टा क्या होगा, लाउड। उठाना मतलब राइस, राइस करना, फाल गिरना। सुरक्षित इज कॉल्ड सेफ, उसका अपोजिट खतरनाक, दैट इज कॉल्ड डेंजरस। छोटा को क्या बोलते हैं, शॉर्ट, बड़ा को क्या बोलते हैं, टॉल। सरल इज कॉल्ड सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जैसे आप कह सकते हो यार तुम बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सन हो, सुना होगा आपने, ठीक है। इंग्लिश, इसको इंग्लिश कहते हैं, जब आप हिंदी बोलते हुए उसमें इंग्लिश के वर्ड्स को इनरोल करें दैट्स कॉल्ड इंग्लिश, राइट। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, आपको बहुत ही इन दिस कलयुग यू विल गेट सो मेनी कॉम्प्लेक्स पर्सन, नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आल्सो कॉम्प्लेक्स पर्सन्स आल्सो, इट्स वेरी and it's very very difficult for now these we are facing problem of simple people, we are not meeting simple people, we are meeting complex people, and this is a great problem of कलयुगा, राइट। कलयुगा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यही है। चलिए, एक सिंगल, विवाहित को बोलेंगे मैरिड। छोटा, यहाँ पे एक्चुअली ये एक सिंगल अगर सही कहा जाए तो यहाँ पे अनमैरिड होगा, अनमैरिड का अपोजिट मैरिड होगा। सिंगल का डबल होता है, ठीक है, सिंगल का डबल, लेकिन एक्चुअली ये मैरिज के सेंस में यूज कर रहा है इसलिए सिंगल कह रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते, सिंगल का डबल और मैरिड का अनमैरिड हो जाएगा, मैरिड का अपोजिट अनमैरिड, ठीक है। छोटा इज कॉल्ड स्मॉल, बिग बड़ा, बिग, ठीक है। स्टार्ट शुरुआत, फिनिश समाप्त। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, कमजोर का मतलब वीक, ट्रू का मतलब ट्रू, और फॉल्स होगा इसका अपोजिट। और अप का डाउन, ऊपर का नीचे। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 50, हाउ मेनी, 58 हमने कंप्लीट कर लिया। ये 58 वर्ड्स मैंने आपको सिखाए, तो 58 का डबल आप कर लीजिए, तो आपने विद इन अ फ्यू मिनट्स आपने बहुत सारे वर्ड्स लर्न किए। और आपने देखा कितनी स्पीडी और कितनी स्मूथली और कितनी ईजी से हम लर्न कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा फोकस्ड होने की ज़रूरत है डियर। सी फॉर एवरीथिंग्स, फॉर एनीथिंग्स व्हाट एवर यू आर डूइंग, यू नीड टू लिटिल, नॉट नीड टू बी लिटिल, अभी थोड़ा सा ज़्यादा होने की ज़रूरत है। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं, देखिए वाट एवर इट इज़ यू आर लर्निंग, आपको फोकस्ड तो रहना पड़ेगा गुरु, देन ओनली यू कैन लर्न फास्ट, राइट। अदरवाइज सो सॉरी, विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, आप सीख नहीं पाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, लास्ट में क्या होंगे, आप हो जाएंगे डिप्रेस। तो इसलिए फोकस्ड रहिए जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। So see you in the next video. Till then, keep studying, keep smiling. Good luck and goodbye.